Yes, good morning, everyone. Just a minute. Yes. So only 32 students are still joining. Some people. Okay, so let's wait for 5 more minutes. Okay, we will start at 11:10. Let everyone join. Okay, so let's begin. Sai, Gaurav, Kriti, Gaurav, Madhur, Divyam, Raj, Ujjwal, Shivam, Rishabh, Devansh, Chandra, Devansh, Yash, Kunal. So everyone present. Good morning. Let's just give the yes. Okay, so we were seeing the communication diagrams last time, right? We were seeing this communication diagrams. So we have completed this sequence diagrams. किसी को किसी diagram में कोई दिक्कत? So for your midterms also, you have seen both your test one and test two. So prepare accordingly. Whatever I have taught in the class, that's it. That should be your first priority. Okay. Some 8 to 9 PPTs are uploaded on for all the topics in your portal in the class PPTs folder. Okay. It is basics first in UML, RUP. सबके लिए अलग PPT uploaded है. Use case, class diagram. जो भी क्लास में पढ़ा है that PPT. Revise those PPTs. So PPTs पढ़ते time if you face any doubts, just watch the recorded lectures also. Okay. So do you want to me to reduce your midterm syllabus? Shall I give you this module or shall I ask till module 2 only till CRC card? It's totally up to you. You want 3 modules in your midterm or you want till 2 modules? Okay, so in your midterms, I will ask till module 2 CRC cards. Okay. This module I will not ask in your midterm. Given the condition, you prepare well. Okay. Now one whole module I have reduced, so only 2 modules you have to prepare. So prepare well. Okay. Don't have to look anywhere else, just the PPTs that are uploaded. First module is pretty simple. You have basics, है ना, उसमें क्या एनालिसिस होता है, डिजाइन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके कंसेप्ट्स क्या है ना, दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस देयर, वो पढ़ लेना.
फिर मॉड्यूलराइजेशन पढ़ाया था, कोहेजन एंड कपलिंग, उसके ऊपर मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, मिड सेम में पूछूंगा, वो पढ़ लेना, राइट। और सीआरसी कार्ड्स यू मस्ट हैव सीन कि दोनों टेस्ट में सीआरसी कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सीआरसी कार्ड्स पढ़ लेना। Raj, test, actually I made this a bit lengthy this time because see, in your NSEM you will have to solve 60 questions, right, in 2 hours only. So this time I've given you 30 minutes for 20 questions. It was tough. Some of the questions were tough. Scheme, right now I don't have your schedule. I think by today or tomorrow schedule should come. अभी मेरे पास नहीं है। In your actual mid-sem and sem, questions will be such that you will be able to solve them. Okay. ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है that everything will be MCQs, but mostly 90% it's going to be MCQs only. I will give you enough time, Chand, don't worry. You will have enough time based on the questions. Don't worry regarding that. Okay. Just read see, there will be some question that will be very easy. For example, what fill up, Kritij? समझा नहीं, what is fill up? अच्छा, fill in the blanks you are saying. Fill in the blanks or नहीं, fill in the blank don't ask. मुश्किल हो जाएगा तुम लोग fill in the blanks बिना ऑप्शन दिए. Fill in the blanks I don't ask. नहीं, tracking will not be there. Backtracking कभी नहीं मिलेगी हर्षित. You will be able to solve, Raj, don't worry. This time actually I have intentionally made the questions a bit difficult so that you can get a hang of it, how those are coming in the exam. Don't worry regarding marks. Test में खराब भी score करो, it's fine, no issues. I will give you more marks in your assignment, don't worry. You just submit everything on time. That is why I never check assignments in the first place. First I see how the student is performing in the whole semester. अगर आपका marks खराब रहता है, give the marks in the assignment. You don't have to worry regarding that. Only thing that you should worry is if I'm giving you something, assignment and test, you have to submit that thing on time. This is the bare minimum thing that you should do. Rest 6 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, doesn't matter much. But if you are not submitting, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम लोग तब मारोगे असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, क्योंकि तब मेरे पास भी कोई ग्रेस मार्क्स देने का स्कोप होगा नहीं, बिकॉज टेस्ट में तो जितने मार्क्स आ गए उतने आ गए. You will have 2 assignments. 30 is your assignment marks I have told you in the internals. So those 30 marks I can give you if you have submitted your assignment. There I can give you some grace marks. Right? So submit everything. Abhinav, have you submitted the assignment, first one? हाँ, good. किसी एक ने नहीं किया था. I don't remember the name. Just submit everyone, है ना? Assignment submit कर दिया करो. बाकी टेस्ट में ज्यादा ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं, नंबर खराब आ रहे कमा रहे, सीखो इससे. हाउ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, प्रैक्टिस देम सो दैट इफ द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इन द मिड सेम यू शुड नॉट गेट देम रॉन्ग. ये दोनों टेस्ट पेपर आई विल अपलोड ऑन योर ब्लैक बोर्ड. क्या अटेंडेंस शिवम? अटेंडेंस अटेंडेंस सभी की गलत आ रही है, हर सब्जेक्ट में गलत आ रही है, मैं क्या करूं. इसमें तो अटेंडेंस सही मेरे पास, द अटेंडेंस हियर ना, इट्स नॉट इन माय हैंड्स. मैं क्या, आई हैव फॉरवर्डेड द मेल आल्सो टू द एकेडमिक डिपार्टमेंट. मेरे ख्याल से तुम लोग की हर सब्जेक्ट में गलत हो गई अटेंडेंस, सिर्फ इसमें नहीं है. हाँ तो सभी में है तो फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं. You keep on attending the class because when you attend the class in the blackboard itself, a report is generated. वहां पता रहता है कौन लॉग इन कर रहा है, कौन लॉग आउट कर रहा है. So last में proof रहना चाहिए कि that you have attended the classes. So you do your work only. That is the thing. ठीक है, बाकी देखा जाएगा बाद में. Don't worry. Okay, just you do your duty. Rest, I will take care of your attendance. ठीक है. So in the midterm I will ask till CRC cards, 2 modules. Prepare well. You have seen the kind of questions that will come. I will upload both the tests on your portal. आपके ब्लैक बोर्ड में दोनों टेस्ट अपलोड कर दूंगा विद द आंसर्स. एक बार फिर से उसको देखना और उसको ढूंढना पीपीटी में मैंने कहां से पूछा है. उसी की तरह फिर क्वेश्चंस आएंगे अगेन.
So if you have done something wrong this time, you should not be doing that again. ये आपका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. टेस्ट लेने का मतलब ही मेरा यही था, मेन मोटो, that you get an idea that what kind of questions I will ask. If I ask the same kind of questions again, you should not get them wrong. That's it. That's it. This is your third year. I want that you should score good, but for that you have to read. This is the easiest subject. जितने सब्जेक्ट पढ़ोगे थर्ड ईयर में, this is the easiest one. And the easier the subject, the difficult it is to score there. That suppose you are reading compiler design, right? कल में LL1 parser पढ़ा होगा, पता है LL1 parser क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में. You are very sure about that. ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ोगे, पता है उस क्वेश्चन आना ही है. ग्राफिक्स पढ़ोगे, उसमें जितने एल्गोरिथम्स पढ़ोगे उनसे क्वेश्चन आना ही है. But here you cannot say what is going to come or from which part I will ask what. Right? So both the test papers have to do. For now, your syllabus is limited till module 2. I will ask both the test papers I will upload on the portal. उसमें मॉड्यूल 1 और 2 से क्या क्या क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसको ढूंढना पहले पीपीटी में, वेयर आर द क्वेश्चंस एक्चुअली, एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस कहाँ पे हैं. ठीक है, बैक ट्रैकिंग करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पढ़ाई करो, वो क्वेश्चंस देखो, उससे रिलेटेड आसपास की सारी चीजें अपने आप रिवाइज हो जाएंगी. यू शुड प्रिपेयर. फाइन. बाकी क्लास डायग्राम पढ़ लेना, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ लेना, इंटरफेसेस पढ़ लेना, सब पढ़ाया है मैंने, है ना. वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना, भूल गए हो. यूज केस डायग्राम में जितने रिलेशनशिप्स होते हैं, यूज केस डायग्राम्स की क्या कंडीशन होती है, जितना जितना भी पीपीटी में है, एवरीथिंग इज देयर इन द पीपीटी. जस्ट रिवाइज दैट. दैट्स इनफ. दैट्स मोर देन इनफ. यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स. कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज इनफ. आई एम टेलिंग यू मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली. बाकी आज वैसे कम्युनिकेशन डायग्राम भी हमारा खत्म ही हो जाएगा, थोड़ा सा ही है. सो एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड टिल मॉड्यूल 3. इसके बाद सिर्फ 2 मॉड्यूल्स आर रिमेनिंग. दैट विल हार्डली टेक, वैसे तो 2-3 दिन ही लगेगा अगर वैसे कराना हो तो, बट आई विल गो स्लो, तो इट विल टेक यू अराउंड 1 month. So your syllabus will be over. This is an easy subject, right? There is nothing much. Given the condition you are attending the classes. अब ऐसा सोचोगे कि पीपीटी तो अपलोड है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पीपीटी डाउनलोड करके आंसर कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं. इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, इतने कम टाइम में होंगे कि ढूंढते रह जाओगे पीपीटी में कहाँ दिया हुआ है. Getting the point? So just revise whatever you have taught. अब तो सिलेबस भी कम है. बेसिकली तुम्हारा एक्टिविटी, बेसिकली सारे पार्ट्स कट गए तुम्हारे. अगर थर्ड मॉड्यूल, इफ आई एम नॉट आस्किंग द थर्ड मॉड्यूल, मींस एक्टिविटी डायग्राम आई विल नॉट आस्क, सीक्वेंस डायग्राम्स आई विल नॉट आस्क, कम्युनिकेशन डायग्राम्स आई विल नॉट आस्क. 3 कट गए सीधे सीधे. Right? So just prepare well, everyone. You should be scoring good. I want that everyone should score good. This is your third year. You are going to have your placements next year. So try to score as much as possible. And 99%, 99 के 100% ही है कि MCQs ही होंगे, जैसे टेस्ट देते हो यार, और कुछ नहीं होगा. अब ऑफलाइन क्लास होता तो थ्योरी होती. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बढ़े आगे. Any more doubts? Anyone? After your midsem, I will give you one more assignment. Total 2 assignment होंगे आप लोगों के. That is comprised of 30% marks. तो submit कर देना, कर आगे. So that if you score bad in test, I can give you some grace marks at least in the assignment. Okay, so now let's see again from the very starting. And Sagustani. So किसमें ये communication collaboration diagram, why there are 2 different names? Why there are 2 different names? Version, yes, Chandra, right. In UML 1.0, जो पहले का UML version था, in that it is known as collaboration diagram. And after UML 2.0, जो अभी आपका Star UML और Visual Paradigm का updated version है, in that this is known as communication diagram. So don't get confused दोनों नाम देखने में. So this is nothing but this is a similar kind of in the sequence diagram, whatever the sequence diagram was doing, the same information is going to be provided by this communication diagram also. The only difference is here that time element is removed. You were having the object, and object was having a time element, its lifeline. Time was starting from t equal to 0 here, and it was moving forward. It was increasing in the downwards direction. So that time element is reduced, or that time element is not present here. Apart from that, the same information is going to be represented by this communication diagram also.
Okay, again you will have objects, right? This is a object name from this class. This shows that this is an anonymous object. This is also object, but this doesn't have any name. We have seen this representation, right? इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखो. Then you have this, ये क्या है? ये सिंपल ऑब्जेक्ट नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ क्लास मत लिखो इसके बाद, डोंट पुट दिस colons and write class name. So यहाँ पे बेसिकली थ्री थिंग्स आर देयर. सीक्वेंस डायग्राम में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, रिकर्सिव मैसेजेस, सेल्फ मैसेजेस, लाइफ लाइन्स, एक्टिवेशन बार्स, सिंक्रोनस मैसेज, असिंक्रोनस मैसेज, दुनिया भर की चीजें इन द सिंक्रोनस डायग्राम्स. यस और नो? गेटिंग द पॉइंट ना? सो इन द सीक्वेंस डायग्राम यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे इतनी चीजें नहीं है, यहाँ पे बस बेचारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बेचारी एक छोटी सी लिंक है, और बेचारा एक छोटा सा मैसेज है. बस तीन ही चीज है इन द कम्युनिकेशन डायग्राम. इन्हीं तीनों चीजों की मदद से जो बनाना है बनाओ, और आपके पास कोई भी हथियार नहीं है, और you don't have any other tool in your kit. Only these objects is there, this link is there connecting two objects, and this message is there. और मैसेज कोई सिंक्रोनस असंक्रोनस रिकर्सिव ऐसा अलग से कुछ नहीं है, एक ही मैसेज है. तो जो आपको बनाना है इसी से बनाना है. सो अगर आपको सपोज सेल्फ मैसेज यू वांट टू क्रिएट, तो इन द लाइफ लाइन तो सेल्फ मैसेज ऐसे होता था, ये लाइफ लाइन थी, यहाँ पे एक सेल्फ मैसेज का अलग से कॉलम था, यहाँ पे सेल्फ मैसेज बनाना है. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, वही लिंक उसी पे घुमा देंगे और मैसेज शो कर देंगे, क्योंकि है ही हमारे पास यही तीन चीज, और कुछ है भी नहीं हमारे पास. तो जितना है उसी रिसोर्सेज को वी विल यूटिलाइज एंड वी विल मेक सेल्फ मैसेज लाइक दिस. रिकर्सिव मैसेज भी इसी से अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे, और कुछ हमारे पास है भी नहीं बनाने के लिए रिकर्सिव मैसेज अलग से. रिकर्सिव भी है, सेल्फ भी है, क्योंकि और कुछ है नहीं. ज्यादा ये कर सकते हो कि अगर रिकर्सिव मैसेज, तो इस मैसेज के आगे लिख सकते हो स्टीरियो टाइप लगा के कि दिस इज अ रिकर्सिव मैसेज, बहुत अगर अलग से मन है तो. अदरवाइज दिस इज फाइन. देन इन द सीक्वेंस डायग्राम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया वाज ड्यूरिंग द लास्ट एग्जाम, रिमेंबर? जिसमें पूछा था कि ये मैसेज पहले जाएगा, फिर वो मैसेज जाएगा, कि ये जाएगा वो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So in the sequence diagram, only when this message is received, this message can be sent. So that is why this is sequence diagram. This is a kind of nested message. Suppose this is A, this is B, this is C, this is D. So only when sorry, only when A is called, inside A, B will be caught. Inside B, this C will be caught. Inside C, this D will be caught. Everything is a nested message. अगर originally A ही नहीं भेजा तो ये कुछ नहीं होगा आगे का. Everything will be removed. That is nested messages. तो अगर अब you know that this is a sequence diagram and we have a communication diagram also, दोनों की information तो same है, भी nested messages receive करने चाहिए. तो इसमें nested messages receive करने के लिए we will put the indexing, that if this is message 1 and I want to show that only after this object registrar system receives message 1 it can send this message, so I will name this message as 1 and this message as 1.1, and this process will keep on repeating. This thing we have seen in the last class, right? Suppose this is message 1. Only when message 1 will be received here, message 1.1 will be sent. This is showing nested message. Only when 1.1 will be received here, 1.2 will be sent here. This is nested messages. कोई doubt किसी को इसमें? Clear? Fine. So suppose ये तो nested messages की बात हो गई. But suppose you want कि नहीं, ये मैसेज तो जा रहा है, इसके बाद ये nested messages will these nested messages will go. This is fine. But suppose I want to send one independent message also to the same object. So उसकी नंबरिंग अलग कर दो खाली 2. मतलब ये जो 2 मैसेज है, ये मैसेज 1 से इंडिपेंडेंट है, इसका वैसे 1 से कोई लेना देना नहीं. 1 एक अलग मैसेज है जिसके अंदर 1.1 कॉल हो रहा है, और 2 अब ये अलग मैसेज है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. फाइन. And everyone respond in the chat box. I've told you in the initial phase only. I should see your name in the chat box. वरना टेस्ट में भी खराब नंबर आएंगे, असाइनमेंट में भी खराब नंबर ही दूंगा. If I don't know, if I don't remember your name by the end of the semester, you are going to get bad marks in your internals. I'm telling you again. Don't just log in and sleep. That is not an attendance for me. You don't have to answer anything, but you should be responsive in the chat box. Any doubts? Anyone in this? Now Abhinav is responding from.
last few classes. 43 students are present and I am seeing only these 10 to 15 students daily. बाकी देख लूंगा, नंबर कम आएंगे मुझे मत बोलना. चलो, now let's see conditional messages. So in the sequence diagram, you have seen how you used to write conditional message in the sequence diagram. If else वाले मैसेज कैसे लिखते थे? Alt, यानी you used to use the fragments, right? You used to use the fragments. अब अगर ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्ट यूज करोगे, नहीं तो ऑप्ट यूज करोगे, नहीं तो लूप है तो लूप यूज करोगे. सो यू आर यूजिंग फ्रैगमेंट्स. क्या कम्युनिकेशन डायग्राम में वी हैव द फ्रैगमेंट्स? वी डोंट हैव द फ्रैगमेंट. यहाँ कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट, ये लिंक और ये मैसेज छोड़ के हमारे पास कुछ नहीं है हाथ में. तो अब क्या करें, मजबूरी है. सपोज आई वांट टू सेंड दिस मैसेज, पर इसमें एक कंडीशन है. तो कैसे, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से जस्ट टेल मी हाउ यू राइट द कंडीशंस इन अ डायग्राम. कोई भी कंडीशन चेक करनी हो तो कैसे लिखते हो? You write in the guard condition, that is square condition. Yes, it is good. You write in the guard condition. This square bracket में लिखते हुए आ रहे हो ना, एक्टिविटी डायग्राम में भी यहाँ लिखा, सीक्वेंस डायग्राम में भी यहाँ लिखा. Yes or no? Everything that you write in a square brackets is a condition that you are checking. एक्टिविटी डायग्राम में पढ़ा था ना, ऐसे जब जा रहे थे यहाँ से तो कंडीशन चेक हो रही थी. यहाँ पे यस है तो इधर, नो है तो इधर. So similarly, you can give anything that you want in this square bracket. उसी मैसेज के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो. Write whatever condition you want to write. In any normal English language also you can write. So whenever this is saying that this message will be sent only if this guard condition is true. For example, take this example. Here there is an object from the sales class. Here there is an object from the accounts receivable class. Here is an object fulfillment. What is the name of this object? Anonymous. Good. What is the name of this object? Same, anonymous, right? And what is the name of this object? This is fulfillment, right? इसका नाम है, this is fulfillment. क्या ये सारे ही ऑब्जेक्ट हैं या इसमें से कोई एक्टर है? Is there anything known as actor here? Is any actor used here? नहीं है ना, होता तो स्टीरियोटाइप में लिखा होता एक्टर, right? If there would have been an actor, you would have written in the stereotypes in the actor, right? So there is no actor. So this object diagram is showing first this sales object, object from the sales class is sending the message that please tell me my due balance. Then the account department replies him with his due balance or the leftover balance. Then based on this leftover balance, only if the leftover balance is zero, only then this sales object will interact or will send any message to this fulfillment object. So how you will write, this will the message that will be sent, fill order, but only when this due balance is zero. Means ये link हमेशा रहेगा, this link will always exist. How in the exam I will ask you question regarding this. I will give you the same diagram and I will give you some statements. First statement will be the link between this sales and the accounts will always be there. Another statement will be the link between the sales and fulfillment class will always be there. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोनों में? फर्स्ट वाली ट्रू है, राइट? ये हमेशा रहेगी, यहाँ पे कोई गार्ड कंडीशन नहीं, पर ये हमेशा नहीं रहेगी. दिस इज हाउ योर एमसीक्यूज विल बी मेड, राइट? I will give you a use case diagram like this. Suppose I will give you one use case diagram. I will give you some statements. First statement, the use cases shown in the diagram have to be only in this order. True or false? False, right? Second statement, one use case, yeah, suppose there is an actor. ये तो इसी बार मैंने पूछा था शायद अभी कि there is an actor and this actor doesn't always have to interact with any use case. मतलब ये एक्टर खाली अकेला भी हो सकता है, इसको हर यूज केस से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है. फॉल्स. इफ देयर इज अ एक्टर इट हैज टू इंटरेक्ट विद अ यूज केस डायग्राम. सेकंड स्टेटमेंट, अ एक्टर कैन इंटरेक्ट विद मोर देन वन यूज केसेस एट द सेम टाइम. ट्रू, राइट? चलो एक स्टेटमेंट और बताओ. आई कैन हैव अ यूज केस आउटसाइड दिस सिस्टम बाउंड्री. फॉल्स और ट्रू?
I can have a use case outside the system boundary. This is false. Now tell me another statement. These are my use cases. कोई system boundary नहीं बनाई है मैंने. This is the actor. Okay, there is no system boundary. Is this diagram correct or wrong? This diagram is correct. This diagram रुक जाओ. This diagram is correct. System boundary ये मैंने first test में पूछा था, इससे related एक question I guess. System boundary is not compulsory. अगर आपने बनाई है सिस्टम बाउंड्री, यही मैंने पढ़ाते टाइम बताया, अगर आपने सिस्टम बाउंड्री बनाई है तो उसके अंदर जो है वही आपके सिस्टम के अंदर होगा, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता एक्टर के सिवा. बट अगर आपने सिस्टम बाउंड्री नहीं बनाई है तो मत बनाओ. इट इज फाइन, ऑल फाइन, नो इश्यू. यू हैव सीन ना, एक पैकेज के अंदर भी हम लोग यूज केस डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे एक्टर बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे यूज केस वी कैन क्रिएट. Remember, when I was teaching you packages, I have shown you this. How can you compress use cases, complicated use cases to packages? So वहां पे मत बनाओ सिस्टम, नहीं जरूरत है. It's totally up to you. देखो इसमें one basic rule you have to keep in mind in UML is, in all the diagrams, every diagram, you can miss a thing, no issues. आप हो सकता है एक रिलेशनशिप मिस कर दो, ये चल जाएगा, बट आप गलत रिलेशनशिप नहीं बना सकते. मतलब आप यहाँ सिस्टम बाउंड्री मिस कर दो, चलेगा, इट्स फाइन, कोई नहीं पकड़ के आपको ले जा रहा है कहीं. बट अगर आपने सिस्टम बाउंड्री बना दी है तो इसके बाहर कोई यूज केस नहीं बनाओगे, अब ये गलत हो जाएगा. Yeah, actor will be inside the package. Actor can be inside the package. This whole use case diagram can be inside the package. पैकेज ऐसी तो क्रिएट करते हो जावा में, पूरी पैकेज के अंदर फिर क्लासेस क्रिएट करते हो अलग अलग, राइट? सो एक्टर विल बी इनसाइड द पैकेज, बट एक्टर विल नेवर, नॉट टेल मी, विल एक्टर, कैन एक्टर एवर कम इनसाइड दिस सिस्टम बाउंड्री? इसके अंदर आ सकता है एक्टर कभी? इसके अंदर नहीं आ सकता है. एक्टर कैन नॉट कम हियर, राइट? So these kind of questions I will ask you. They are pretty easy questions. अभी इसी सबको मिला के चारों स्टेटमेंट एक साथ दे दूंगा, सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दे दूंगा, तो लगेगा आपको टाइम, राइट? सो यू नो एवरीथिंग, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो एवरीथिंग, जस्ट गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. ओके, डोंट वरी, इन द एग्जाम यू विल गेट सफिशिएंट टाइम, पेपर नहीं छूटेगा किसी का. गिव ईच क्वेश्चन इट्स ड्यू रिस्पेक्ट, और खुद के लॉजिक से ही क्वेश्चंस करना, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज विल बी मेड, और जैसे अभी तक आते हुए बन भी रहे हैं अभी 2 टेस्ट से, राइट? दीज थिंग्स यू हैव टू, कुछ बहुत ही सिंपल आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार खाली ये पूछा था, इस सिंबल का क्या मतलब है इन अ यूज केस डायग्राम, पूछा था ना ये, सिंपल आंसर था, जनरलाइजेशन. अच्छा, एक क्वेश्चन था जो मैंने क्लास डायग्राम दिया था, आई हैव गिवन यू वन क्लास डायग्राम, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स थे. आई थिंक यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास थी, इफ आई रिमेम्बर. यहाँ पे तो एक फैकल्टी क्लास थी. देयर वाज वन सेमिनार क्लास आई गेस हियर, ऐसे ही कुछ था, और एक क्लास यहाँ पे थी, है ना? टोटल 4 क्लासेस वर देयर, और एक एरो ऐसे जा रहा था, स्टूडेंट से सेमिनार में जा रहा था, सेमिनार से इधर जा रहा था. और मैंने पहली स्टेटमेंट आपको दी थी दैट स्टूडेंट इज द पेरेंट क्लास फॉर सेमिनार एंड सेमिनार इज द पेरेंट क्लास फॉर C++. ये फॉल्स है, ट्रू स्टेटमेंट है? स्टूडेंट इज द पेरेंट क्लास for this and this is the parent class for this. Those of you are saying false, very good, but जितनी कॉपीज मैंने देखी सबने इसका आंसर ट्रू मारा था. क्लास डायग्राम में अगर इनहेरिटेंस शो करना हो तो पहली चीज तो ऐसे एरो नहीं होगा, ये तो डायरेक्टेड एसोसिएशन का एरो है, एरो होगा ऐसे. ये बहुत माइनर सी मिस्टेक है, इसको ध्यान रखो. और दूसरी चीज, एरो जिस पे होगा वो होता है पेरेंट क्लास, बाकी होते हैं चाइल्ड क्लास. तो ऑब्वियसली पहली चीज तो ये है नहीं जनरलाइजेशन. अगर ये होता भी तो ये भाई साहब जो बीच वाले हैं, ये होता पेरेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट, और ये जो है इधर वाली क्लास, ये होता पेरेंट क्लास ऑफ दिस. ये ऐसे चलता. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल मिस्टेक्स दैट अ लॉट ऑफ यू हैव डन. तो हर रिलेशनशिप में इफ यू आर रीडिंग अ यूज केस डायग्राम, उसने रिलेशनशिप मैंने पढ़ा है, एसोसिएशन, डायरेक्टेड एसोसिएशन ये होता है, जनरलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सक्लूड, और एक यूजेस भी बताया था, बट उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है.
ये पता होना चाहिए कि यूसेज डायग्राम में इनका क्या मतलब है, क्योंकि हर डायग्राम में हर सिंबल का मतलब अलग है, थोड़ा थोड़ा सब में चेंज हो जाता है. सो दीज आर द वेरी माइनर मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग. गेटिंग द पॉइंट. बाकी पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ये इसका पेरेंट क्लास है कि नहीं है बताना. फिर एक थी में, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. इसी में मैंने ये भी पूछा था दैट कुछ मल्टीप्लिसिटीज दी गई थी यहाँ पे. सपोज यहाँ एक जीरो मल्टीप्लिसिटी से ऐसे डॉट 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 था, एक स्टेटमेंट दिया गया था, वन स्टूडेंट, सपोज यही बना दी मैंने मल्टीप्लिसिटी, यहाँ जीरो लिखा है, डॉट डॉट स्टार लिखा है, एंड आई आस्क यू दैट अ स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरली अटेंड अ सेमिनार. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे जीरो मल्टीप्लिसिटी भी हो सकती है. ये पूरा क्वेश्चन जो दिया था, अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटीज ओनली. सिर्फ मल्टीप्लिसिटी देख के पढ़ना था क्वेश्चन. ऐसे फैकल्टी से एक मैं यहाँ से इधर जाते हुए था सेमिनार में, वहां भी जीरो था, राइट? सो यू हैव टू रीड द मल्टीप्लिसिटीज. अगर मल्टीप्लिसिटीज वन से डॉट डॉट स्टार है, सो मीन्स ये कंपल्सरली होना ही होना है वन. अगर जीरो से स्टार है, मतलब ये नहीं भी हो सकता है. अगर ये दो से चार है, इट्स फ्रॉम टू टू फोर, सो दिस मीन्स एटलीस्ट इट हैज टू बी टू. मतलब सपोज सेमिनार में मल्टीप्लिसिटी, सपोज दिस वाज द स्टूडेंट क्लास, suppose this was the student class and this was my seminar class. यहाँ पे I have given you the multiplicities 3 dot dot 4. What does this mean? That a student has to enroll at least in 3 seminars. तीन में करने ही करने हैं, ना करने का ऑप्शन नहीं है. If I give you a state, a student can enroll in 2 seminars. False or true? False. A student can enroll in at least 6 seminars. False or true? False. Right? So these kind of questions will come. एक इन दिस सेकंड टेस्ट ओनली आई वास्ड यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग, जिसमें दो ऑप्शन दिए थे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया हुआ था, एक इंटरफेस दिया हुआ था. बहुत से लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी मारा है. यू हैवंट रेड दिस स्टेटमेंट केयरफुली. स्टेटमेंट ने बोला था कि जो फंक्शंस है, जो डेफिनेशंस है, वो हमेशा दी जाएगी, बट कोई भी जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा दिया जाएगा, बट फंक्शन डेफिनेशन कभी नहीं देंगे. नेवर. देयर वाज अ वर्ड नेवर. क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि एक फंक्शन की तो मैं डिक्लेरेशन डिफाइन भी कर दूं, डिक्लेयर भी कर दूं? When I was teaching abstract class, I have told you that abstract class is one जिसमें हो सकता है आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो सिर्फ डिक्लेयर किया हो. इसके बारे में काम कैसे करेगा मुझे नहीं पता, बट इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है दैट यू हैव वन फंक्शन से एक्स वाई जेड जो कि मैंने डिक्लेयर कर रखा हो. इसके बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ दिस विल वर्क. then also that will be abstract class because at least there is one function that is not declared. I have taught you this. है ना? पढ़ा है ना? और क्वेश्चन में आपसे, और इंटरफेस भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इंटरफेस में फर्क ये पड़ता है कि यहाँ जितने फंक्शंस होंगे यू कैन डिक्लेयर ओनली, कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते. यहाँ पे किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी. एंड इन द स्टेटमेंट दैट आई हैव गिवन यू, आई आस्क्ड यू नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं कर सकते. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो कर सकते हैं ना. फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो डिक्लेयर्ड हो डिफाइन के साथ साथ. So these are very minor. You got the point ना? What I was trying to say that in the abstract class you can have some functions जो सिर्फ डिक्लेयर नहीं किए गए, उनको डिफाइन भी किया गया है कि वो काम कैसे करते हैं. बट इंटरफेसेस में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो डिफाइन किया गया होगा, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देंगे सारे फंक्शंस. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शंस को जहां डिफाइन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन क्लासेस को, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के फंक्शंस की डेफिनेशन जिस क्लासेस में देते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंक्रीट क्लास, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम एंड दैट हैव बीन कमिंग इन योर बोर्ड टेस्ट. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ओके, बस अपनी कंसेप्ट स्ट्रांग रखो जो पढ़ा है. चलो नो, कोई डाउट किसी को पूछना है? क्या हुआ अमरेंद्र? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? अमरेंद्र पटेल. चलो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस. So we were seeing the conditional operators, conditional messages. That if you want to send a conditional message in a communication diagram, you will use this guard condition.
or anything that you write in the square brackets. How you send parallel message in sequence diagram? पैरेलल मैसेज मतलब एक दोनों मैसेज एक साथ गया. इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, ये डायग्राम याद करो. टर्न ऑन फ्लेम्स एंड टर्न ऑन फैन एक साथ सेंड हो रहा था. दीज वर सेंड साइमल्टेनियसली, राइट. टर्न ऑन फ्लेम्स के बाद ये सेंड नहीं हो रहा था. दे वर सेंड साइमल्टेनियसली. तो क्या किया था, ऐसे फ्रेगमेंट बना दिया था. इन द फ्रेगमेंट वी हैव रिटन पैरेलल, PAR. और ये फ्रेगमेंट किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये किसी एक और चीज का रिप्रेजेंटेशन है. टेल मी. Alt. Yes, Madhu. This is the representation of alt also. बस alt की जगह यहाँ पे पैरेलल लिख देंगे, मतलब ये दोनों मैसेजेस पैरेलल में सेंड हो रहे हैं. अब यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं, यहाँ गरीबी चल रही है, तो क्या करें? तुम ही बताओ क्या करना चाहिए. Just tell me, think and tell me what we should do. I want to say that this is my object 1 and this is my object 2. अभी object 1 object 2 से कनेक्टेड है, पहली बात तो ये. लेकिन इसको मैसेज भेजना है, दो मैसेजेस भेजने हैं और दोनों साइमल्टेनियसली जाने चाहिए एक साथ. कैसे दिखाऊं मैं? the only tool, जो हथियार आपके पास है यहाँ, that is numbering. That is the biggest advantage that you have. यहाँ पे आप नंबरिंग चेंज कर सकते हो. सीक्वेंस डायग्राम में आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते. नंबरिंग ऑटोमेटिकली पड़ रही थी. तभी अगर इस डायग्राम में देखो, इवन आफ्टर यू हैव सेड दैट दिस इज पैरेलल, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं. बोथ ऑफ दीज आर 2s ओनली, राइट. So in the sequence diagram, these numberings were not in your control. ये automatic आ रहे थे. But in object diagram, you have these two to control the numberings. So if you want to send parallel messages from one object to another, you will again use that same numbering. That suppose this is my message 1. So दूसरा मैसेज जो अगर साथ में जा रहा है, so I will say message 1A. तीसरा मैसेज अगर साथ में जा रहा है, so I will say 1B. I will say 1C. भले चारों मैसेज एक साथ जा रहे हैं, इसका मतलब ये है that clean the room, take out trash, walk the dog. ये सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करने हैं आपको. एक साथ मैसेज जा रहा है. दिस नंबरिंग इज शोइंग यू दैट. इसको अपने हिसाब से कैसे भी वेरी कर सकते हो. यू कैन राइट 1.1, 1.2, 1.3. नहीं मजा आ रहा है तो 1 लिख दो, 1.1 लिख दो, 1.11 लिख दो, कैसे भी कर सकते हो. बट जनरल रिप्रेजेंटेशन इज कि 1 के बाद एक स्मॉल अल्फाबेट लिखते हैं. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, राइट. क्योंकि 1 के अगर ये 1 मैसेज है तो 1.1 मैसेज तब आता था जब हमने when we have read the sequential messaging, राइट. ये वाला जब पढ़ा था, if you remember. 1 के बाद वहां पे 1.a क्यों लिख रहे हैं, 1.1 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 1.1 ये रिप्रेजेंट करता है नेस्टेड मैसेजेस. तो अगर यहाँ पे 1.1 लिखेंगे, if instead of this 1, 1.a, 1.b, if you will write 1, 1.1, तो इसका मतलब होगा 1 जाएगा तब ये 1.1 जाएगा, नेस्टेड मैसेजेस. इस वजह से खाली यहाँ पे पॉइंट के बाद स्मॉल लेटर आ जाता है. स्मॉल लेटर आने का मतलब होता है ओके, नाउ दीज आर पैरेलल मैसेजेस, ये एक साथ जा रहे हैं सारे. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. अब यही एक सीक्वेंस डायग्राम होता है, इसके लिए आई हैव टू मेक वन कम्युनिकेशन डायग्राम. तो कैसे बन सकता था? फर्स्ट आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स, थर्मोस्टेट एंड फर्नेस. सो आई हैव थर्मोस्टेट एंड फर्नेस, राइट. तो सबसे पहला मैसेज व्हाट इज सेंट? गेट द हीट ऑफ द हाउस. सो get the heat of the house is the first message that is sent. Then what is sent? You are saying turn on flames and turn on fan. ये दोनों मैसेज एक साथ सेंड हो रहे हैं अब. So you can एक साथ सेंड हो रहे हैं, खुद ही को सेंड हो रहे हैं. Obviously, see here, these are recursive messages, right? These are recursive messages. तो recursive messages अभी हमने देखा कैसे बनाना. ऑब्जेक्ट के ऊपर वही लिंक बना दो खुद, और मैसेज की नंबरिंग ऐसे दे दो 2A 2B, मतलब ये दोनों मैसेजेस एक साथ जा रहे हैं. That's it. उसके बाद you are sending this next message, that is warm house. So after that you can send the message warm house. This is how that same sequence diagram can be converted to this communication diagram. कोई दिक्कत किसी को पूछो. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स सी, अब लूपिंग भी देख लेते हैं. इतना सब पढ़ा है, पैरेलल मैसेजेस कैसे भेजना है, कंडीशनल मैसेजेस कैसे भेजना है, तो लूपिंग भी देख लेते हैं. बताओ कैसे भेजेंगे लूपिंग? अच्छा वैसे नहीं बताओ, इसमें मैं ही बताता हूँ. सी सपोज दिस इज माई, थोड़ा सा लूपिंग के लिए अलग से
वो सिंटैक्स है, इसलिए आई एम टेलिंग यू। सपोज दीज आर माई मैसेजेस। अब ये देखो मैसेज 1 के बाद ये मैसेज 2 जा रहा है, चाहो तो मैसेज 2 यहाँ भी ऐसे लिख के यहाँ पे 2 लिख सकते थे, उसका भी यही मतलब होता। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते थे ऐसे 2, उसका भी वही मतलब होता। तो ये गलत नहीं है, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, दीज आर मूवेबल। So suppose this is my object 1, this is my object 2. Object 1 is sending message 1 first and then message 2 first, then message 2 second. But I want that this message 1 will not be sent only once. Object 1 will send this message 1 say 5 times. ये मैसेज 5 बार सेंड होगा। जब ये 5 बार सेंड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट 2 को, उसके बाद ही ये सेकंड मैसेज सेंड होगा। ये मेरी कंडीशन है। तो कुछ नहीं, आई विल राइट 1 मैसेज, ये मैसेज मुझे भेजना है, बट मेरी कंडीशन है, मुझे लूप लगाना है, इस मैसेज मुझे 5 बार भेजना है। आई वांट टू सेंड दिस मैसेज 5 टाइम्स। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट अ स्टार बिफोर माय गार्ड्स, बिफोर दिस स्क्वायर ब्रैकेट आई विल पुट अ स्टार। क्योंकि देखो हमारे पास कुछ है नहीं, कीबोर्ड में जितने लेटर्स हैं और इस ऑब्जेक्ट के बॉक्स, इस लिंक के सिवा और इस मैसेज के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है इन कम्युनिकेशन डायग्राम। वो फ्रैगमेंट नहीं है कि एक फ्रैगमेंट डाल के सीधे लूप लिख दिया उसके ऊपर। वी डोंट हैव दिस फंक्शनैलिटीज। सो यही कुछ जुगाड़ पानी किया गया है यहाँ पे। दैट स्टार लगाते हैं, स्टार का मतलब है रिपीटिशन। जैसे अगर आपने ऑटोमेटा सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें होता था ना a/b का स्टार, स्टार मतलब होता था यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्टार एज, पढ़ा है ऑटोमेटा की नहीं, डीएफए एनएफए वाला। उसमें होता था ना अगर रेगुलर एक्सप्रेशन a/b लिखा है कि पावर स्टार है, क्लीन क्लोजर ऑपरेटर बेसिकली, तो क्लीन क्लोजर की जगह 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, उतने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ से मिलती रहेंगी। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वी हैव पुट 1 स्टार, कि स्टार मतलब ये रिपीट हो रहा है। और कब तक रिपीट हो रहा है, जब तक किसी भी इंग्लिश, हिंदी, फारसी, उर्दू, जो भी आपको कीबोर्ड सपोर्ट करता हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, 0 से सपोज 1 से लेके 4 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। सो 1.4 एनीथिंग यू कैन राइट, एनी कंडीशन यू कैन गिव। So this will represent, this condition will represent कि this message will be sent 5 times first, पहले 5 बार ये जाएगा to the object 2, then only the second message will be sent. थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं लूप का। Take this example. Suppose this is my architect and this is my builder. Now architect wants to send message to the builder that first you make 19 floors, then you put your flag on the top of the building. पहले 19 floors बनाओ। तो he will send the message, कैसे भेजेगा, 1 डॉट डॉट, suppose build floor is the message, this is the message, every message is a kind of function, that is why this is represented like this. Send this message, loop लगाना है तो before your guard condition put a clean closure or star, ठीक है। now suppose I want to make 19 floors first, so first this message will be sent 19 times or 20 times, whatever times you want to send, after that only this message will be sent, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल वी हैव सीन इन योर सीक्वेंस डायग्राम, राइट, दैट देयर वाज अ फैकल्टी हु वांट्स टू एंटर द, ये पूछा था ना मैंने यहाँ से ए बी और ई बना के ऐसे पूछा था, इफ यू रिमेंबर, कि किस वाले में वी विल पुट द फ्रैगमेंट्स, टेल मी, याद है? राइट। So suppose first the faculty wants to enter the marks of the students till this condition is true. तो इसके लिए कैसे बनाएंगे सीक्वेंस डायग्राम, एक we will make one object this, one object this, ये नीचे बना है देखो, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये सीक्वेंस डायग्राम, ये कम्युनिकेशन डायग्राम। we will make the faculty object, we will make the registrar system object, and we will send the message that faculty will input the grade, और फिर कंडीशन लिखेंगे स्टार till the time number of grades is less than number of students, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। so this will suggest that this message will be sent again and again and again and again, खाली स्टार को लिखने से ग्रेड कंडीशन के ऊपर। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई डाउट किसी को? so this is how you can, you know, अब देखो till now you have used sequence diagrams, you have, बस last 2 slides are remaining, we have read sequence diagrams, we have read communication diagram, दोनों चीजें पढ़ ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि when to use what,
when you want to use which diagram. Okay, suppose you have communication diagram also, sequence diagram also. अब दोनों की इंफॉर्मेशन लगभग लगभग सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है खाली. फॉर एग्जांपल सीक्वेंस डायग्राम इज इजी टू रीड. अभी मैंने ऐसे थ्योरी पॉइंट क्यों दिए हैं, बिकॉज इन द एग्जाम में इन्हीं थ्योरी पॉइंट से स्टेटमेंट्स बनाऊंगा आपका. नॉट इन द मिड सेम, ऑब्वियसली दिस इज नॉट कमिंग इन द एंड सेम मे बी. ओके, इफ इन द सी आई गिव यू वेरी लेस थ्योरीज इन पीपीटीज, राइट. अगर ये पूरा एरिया देखो, यहाँ कुछ थ्योरी नहीं लिखा है कहीं है. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डायग्राम डायरेक्टली. बट अगर कोई थ्योरी दी गई है इस तरह की, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है. तो इस नजर से भी अपने सारे पीपीटीज को यू गाइस शुड रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग. अगर कहीं कोई थ्योरी दी गई है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो पढ़नी है. हर एक थ्योरी की लाइन एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की. गेटिंग इट? सो व्हाई when to use sequence diagram? What are the benefits of a sequence diagram? First it is easy to read, obviously. ऑब्जेक्ट डायग्राम में तो आपको ऐसे पूरा ढूंढना पड़ेगा ना. इन द ऑब्जेक्ट डायग्राम इसको पूरा समझना ढूंढना, ये तो सिंपल सा बना है. अगर 5-6 ऑब्जेक्ट ऐसे बने तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से जा रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं. दिस कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन डायग्राम. यस और नो? बट सीक्वेंस डायग्राम इज प्रीटी इजी. एक ही बार में देख के समझ में आ जा रहा है कि यहाँ से मैसेज ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर यहाँ लूप लग रहा है, लूप के अंदर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है. इट इज इजी टू रीड, राइट. यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सीक्वेंस डायग्राम. दिस आई विल आस्क यू इन योर एग्जाम्स. ये टाइम एलिमेंट जब भी आएगा, दैट आई वांट टू अटैच अ टाइम एलिमेंट विद अ ऑब्जेक्ट और समथिंग, दैट इज नथिंग बट सीक्वेंस डायग्राम ओनली. कम्युनिकेशन डायग्राम में टाइम एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, लाइफलाइन नहीं बना सकते हैं, राइट. सीक्वेंस डायग्राम में एक के बाद एक ऑब्जेक्ट वी कैन क्लियरली शो. क्या हो गया? किसको माउस पॉइंटर मूव करना है? ओके. अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग. इफ आई हैव दिस सीक्वेंस डायग्राम, अभी मैं इस पोजीशन में हूं, आई हैव दिस सीक्वेंस डायग्राम. ओके. नाउ इफ आई ऐड अनदर ऑब्जेक्ट, वो लेफ्ट में लगाऊंगा या राइट में लगाऊंगा या बीच में भी लगा सकता हूं. दिस इज योर अनदर स्टेटमेंट. कैन आई ऐड अ ऑब्जेक्ट in between a sequence diagram anywhere? Think logically. Yes, we cannot do this, right Sitish? If you want to do this, then you have सारे messages ही change हो जाएंगे ना. बीच में लाके कहीं घुसाने की कोशिश करोगे तो all the messages will be changed. तो ये पॉसिबल नहीं है सीक्वेंस डायग्राम में. ऑब्जेक्ट डायग्राम में तो ऐसा कर सकते थे कि अगर 2-3 डायग्राम यहाँ लगे, तीसरा डायग्राम लाके मैं यहाँ लगा दूं, यहाँ से यहाँ लिंक बना दूं, यहाँ मैसेज भेज दूं. दिस वाज पॉसिबल इन अ कम्युनिकेशन डायग्राम, कि 2 ऑब्जेक्ट पहले से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तीसरा मैं यहाँ लगा के पहले से इंटरेक्ट करा दूं, फिर चौथा मैं यहाँ बीच में लगा दूं, उसको मैं इससे इंटरेक्ट करा दूं. वो ये सब पॉसिबल है. लेकिन सीक्वेंस डायग्राम में दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके. और सीक्वेंस डायग्राम में सारे नए नए ऑब्जेक्ट्स, एक्टर्स जो भी लगा रहे हो राइट साइड में लगते चले जाएंगे. डायग्राम गेट अनवाइडली का मतलब है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डायग्राम एक पॉइंट के बाद. और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू एडिट इट एंड रिवाइज. एक बार बन गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बनाने के बाद चेंज करना पड़ गया कुछ, सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर अ कम्युनिकेशन डायग्राम? फर्स्टली बहुत ही इजी है एडिट करने में, राइट. यू कैन. अच्छा, एक चीज और, we have read class diagrams, where sort of in which you are asking sequence diagram में लेफ्ट में भी नहीं आ सकता. क्योंकि बेसिकली लेफ्ट में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वी अज्यूम कि आपका डायग्राम यहाँ लेफ्ट मोस्ट पार्ट से बनना शुरू हुआ है और ऐसे ऐसे जा रहा है. अब ये अलग बात है कि आपने अपने यूएमएल के बीच में डायग्राम बनाना शुरू किया, तो यहाँ जगह खाली रह गई तो लाके लगा दो, तो ठीक है, लगा सकते हो, राइट. बट that doesn't normally happen. We assume that we are starting the diagram from the left hand side only. So if I ask you this statement that can you add the diagrams on the left hand side also, this is also wrong. क्योंकि वैसे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना, दिस इज डायग्राम ओनली, कंपाइल तो हो नहीं रहा है प्रोग्राम, जो एरर आएगी. ओके. So diagram are always added on the right.
given the condition that we are making the diagram from the left hand side. But if I ask you that suppose the diagram is made from the right hand side, मैंने यहाँ से उल्टा स्टार्ट किया बनाना डायग्राम, ये भी तो पॉसिबल है, मैं यहाँ से बनाऊंगा मेरी मर्जी, तब लेफ्ट में डायग्राम से ऐड होते जाएंगे. गेटिंग एवरीवन? इफ आई गिव यू इन द क्वेश्चन दैट आई एम स्टार्टिंग द डायग्राम फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तब सिर्फ लेफ्ट में ऐड होते जाएंगे डायग्राम. सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज बीच में ऐड नहीं हो सकता है कुछ, बीच में कुछ नहीं आएगा. दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, दैट बीच में कुछ नहीं आएगा. ओके, ऑब्जेक्ट डायग्राम में बीच में आ सकता है. फॉर एग्जांपल सपोज दिस ऑब्जेक्ट डायग्राम, बार बार मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन डायग्राम. व्हाई ऑब्जेक्ट डायग्राम मेरे मुंह से निकल रहा है? क्योंकि सेम ही है. इफ यू रिमेंबर क्लास डायग्राम को, जो ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाया था वो भी तो ये चीज था. ऑब्जेक्ट था, वो आपस में रहे थे. यस और नो? वो भी तो ये चीज था. Yes or no? Object diagram was nothing but just a representation for a communication diagram. Think logically. Communication diagram आपको बताता है कि in my given system, in my system, at a particular point, I have taken the screenshot of my system. This is my object 1, this is my object 2, this is my object 3. They are interacting like this. They are sending messages to each other like this. This is a screenshot, a static view of your system, static view of your objects. और सीक्वेंस डायग्राम क्या बोलता है? सीक्वेंस डायग्राम टाइमलाइन बना देता है कि अभी ऑब्जेक्ट जिंदा है और वो चलता जा रहा है. सो यही जो स्क्रीनशॉट ली है, अब उसको एक्शन में पुट कर दें. अगर इफ आई पुट द स्क्रीनशॉट दैट आई हैव टेकन ऑफ माय ऑब्जेक्ट्स एंड पुट इट इन एक्शन, कि नहीं ऑब्जेक्ट्स अब भाई जिंदा इंसान की तरह यहाँ से बर्थ ले रहे हैं और यहाँ पे डेथ हो रही है, सो दैट विल बिकम अ सीक्वेंस डायग्राम. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस, बट इन्फॉर्मेशन सेम आएगी दोनों से. If I give you a statement that the information represented by a sequence diagram is more compared to a communication diagram, that is a false or true? It is a wrong statement. Information same ही है. I have told you ना, there are some UML tools, for example visual paradigm modeling. सीक्वेंस डायग्राम बनाओगे और उसी सीक्वेंस डायग्राम का इक्विवेलेंट कम्युनिकेशन डायग्राम बन जाता है अपने आप. कटिंग द पॉइंट. सो नाउ अगेन द क्वेश्चन कम्स विच टू यूज व्हेन. तो इसके बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इफ सपोज आई गिव यू दिस स्टेटमेंट, और ये मैं दूंगा कभी ना कभी टेस्ट में या एंड सम में ये आएगा, that suppose my priority is that I want to represent ordering of the messages. I want to show the timeline of my messages. I want to show the order of my messages. कि ये मैसेज पहले गया है, ये मैसेज बाद में गया है, ये मैसेज थर्ड में गया है, ये मैसेज फोर्थ में गया. आई वांट टू लेबल ऑर्डरिंग. आई वांट टू ऐड टाइम. आई वांट टू ऐड लाइफ लाइन. ये वर्ड्स जब आपको दिखेंगे तो क्या मतलब है, क्या यूज करूं यहाँ पे? सीक्वेंस डायग्राम. And if my only priority is that I want to only show the links between the objects, मुझे मतलब नहीं ऑब्जेक्ट जिंदा कब हुआ, ऑब्जेक्ट मर कब गया. आई एम नॉट कंसर्न विद द लाइफ लाइन, द टाइम लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई जस्ट वॉन्ट टू शो द लिंक्स अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. व्हाट वी विल यूज? कम्युनिकेशन डायग्राम. राइट. फिर थोड़ी हाइपोथेटिकल बातें आती हैं कि भैया ठीक है, आपकी जो मर्जी है यू आर यूजिंग, बट अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने हैज टोल्ड यू दैट नहीं भाई मुझे सीक्वेंस डायग्राम नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन डायग्राम ही चाहिए, तब थोड़ी सीक्वेंस डायग्राम बनाओगे, तो कम्युनिकेशन डायग्राम बनाओगे. कौन आपका डायग्राम देखने वाला है? इफ द यूजर हैज आस्क्ड यू नहीं मुझे सीक्वेंस डायग्राम ही चाहिए, मुझे कम्युनिकेशन डायग्राम नहीं चाहिए, तो आप सीक्वेंस डायग्राम बनाओगे. व्हाट इज योर बजट? व्हाट इज योर टाइम कंस्ट्रेंट? क्या दोनों बनाने का टाइम है? क्या दोनों बनाने का बजट है? बजट तो ऐसे क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है. दोनों बनाने का टाइम है? So these kind of hypothetical questions are also asked. So with this, our module 3 is finished. किसी को कोई डाउट है? Ask me. Your midsem syllabus is still CRC cards. Prepare well. I have told you what kind of questions can come, and I will upload both the test papers on the portal. एक बार सारे दोनों test papers देख लेना. And always study in reverse engineering format. क्योंकि टेस्ट पेपर देखो वो क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, उस चीज को देखो और उससे रिलेटेड फिर से वो सारी चीजें पढ़ लो. इस तरह से करो. ठीक है. आई थिंक आई होप आज या कल में यू विल गेट योर शेड्यूल फॉर मिड सेम, एंड इफ मिड सेम इज फ्रॉम 5th, आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्लास बिफोर मिड सेम. ओके. सो एनी डाउट्स, एनीवन? चलो, थैंक यू. वी विल मीट later.